So we are now revising what? Chapter number 10, company audit. बड़े आराम से. सबसे पहले सेक्शन नंबर 141 बात करता है तीन चीजों के बारे में. Eligibility, qualification and disqualification. Who is eligible to act as the auditor of the company? Chartered accountant. When is that chartered accountant qualified? When he is practicing. Practicing where? In India. If a firm is to be appointed, majority of the partners should be chartered accountants and practicing in India. Right? अब बात करेंगे किसके बारे में? Disqualifications के बारे में. So who is disqualified to act as the auditor of the company? बोलो. Number 1, body corporate other than limited liability partnership. Number 2, officer or employee of the company. Number 3, partner or employee of the officer or employee of the company. उसके बाद हम लोग बात करते हैं fourth disqualification, the person who is eligible or is partner or is relative. Number 1, holding any security or interest in the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company. However, relative may hold up to face value of rupees 1 lakh in the company. Right? If the amount exceeds the threshold limit, corrective action should be taken within 60 days. Right? उसके बाद next we talk about is indebted in excess of rupees 5 lakhs. Or next point, given any guarantee or security in connection with the indebtedness of any third party in excess of rupees 1 lakh, तो वो क्या हो जाएगा? Disqualified. Fifth disqualification में आते हुए talk about is business relationship. Directly या indirectly चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. So business relationship किसके साथ नहीं कर सकते हैं? Company, holding company, associate company and subsidiary of such holding company और associate company. सही है एकदम? Yes sir. उसके बाद इसके अंदर कुछ exceptions है क्या? Yes sir. Number 1, professional services. Number 2, ordinary course of business at the arm's length price. 6 point की बात करते हैं. person whose relative is a director or is employed as a director or key managerial person, he will be qualified or disqualified. सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं. वो क्या कहते हैं? सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन बोलना पड़ेगा आपको. दो डिस्क्वालिफिकेशन इसके अंदर. नंबर 1, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर एंड नंबर 2, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स. सीलिंग कितना है? 20. कैसा ये? पर पर्सन टू बी सीन एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. सही बात है एकदम? यस सर. उसके बाद इसके अंदर कौन से कंपनीज नहीं आते हैं? 1 person company, small company, dormant company and private limited company with paid up share capital less than 100 crores. But इनको include करेंगे if they do not comply with provisions of section 92 and 137. सही है एकदम? Yes sir. 8th disqualification की बात करते हैं. वो क्या कहता है? A person who is convicted by court for offense involving fraud and the period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. इसी के साथ हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5. If an application is made to the tribunal or tribunal suo motu, application made by central government or any other person concerned that the auditor has acted, colluded or abetted in a fraudulent manner, and if the tribunal is satisfied, so it will pass the order to change the auditors. But if the application is made by and if tribunal is satisfied, so क्या हो जाएगा? Change the auditor within 15 days and central government to appoint another auditor. इसका final conviction अगर हो गया, final order is passed, तो क्या हो जाएगा? He shall not be eligible to conduct the audit of any company for a period of 5 years. उसके बाद हम लोग 9th डिस्क्वालिफिकेशन में जाते हैं. क्या कहते हैं? Who cannot provide a company, a chartered accountant who is eligible, his subsidiary, associate or any other form of entity. किसे प्रोवाइड नहीं कर सकता है वो? कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. कौन से प्रोविजन, कौन से सर्विसेज नहीं दे सकता है? As mentioned under section number 144. तो वो कौन से हैं? बैड माफिया. बी मतलब बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज. ए मतलब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज. डी मतलब डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. एम मैनेजमेंट सर्विसेज. ए actuarial services. F outsourced financial services. I internal audit. A
इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, लास्ट में एनी अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब बच्चों ऑडिटर अपॉइंट हो गया, अपॉइंट होने के बाद ही अट्रैक्टेड डिस्क्वालिफिकेशन, ही इज सपोज टू वेकेट द ऑफिस, सच अ वेकेशन इज कॉल्ड एज कैजुअल वैकेंसी। सही जा रहे हैं अपन एकदम, यस सर। उसके बाद आप चर्चा करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, पहला सेक्शन कौन सा है? 139 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 5। सही है एकदम, यस सर। फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ, एकदम रैपिड फायर, फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय विद इन हाउ मेनी डेज from the date of incorporation. If they fail, power goes to, they appoint within. If they fail, power goes to, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, they will remain the last authority. So इसका tenure कब तक रहेगा? Till the conclusion of next annual general meeting. First auditor in case of government company appointed by Comptroller and Auditor General of India within how many days? If they fail, power goes to, they appoint within. If they fail, power goes to, they appoint within. Tenure is till conclusion of next annual general meeting. उसके बाद अपन बात करते हैं subsequent auditor in case of non-government company appointed by in the annual general meeting. इसका tenure कब तक होगा? Till the conclusion of 6th annual general meeting. The meeting in which is first appointed is considered as this first annual general meeting. Subsequent auditor in case of government company appointed by Comptroller and Auditor General of India within how many days? 180 days from the commencement of financial year is tenure till conclusion of next annual general meeting. उसके बाद चर्चा करते हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8 talks about what? Filling of casual vacancy. दो कंपनीज कौन सी? गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। दो रीजंस कौन से? रेजिग्नेशन एंड 3D। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे रेजिग्नेशन हो या चाहे 3D हो, अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय Comptroller and Auditor General of India within how many days? 30 days. If they fail, power goes to, they appoint within 30 days. उसके बाद अगर ये हम लोग नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं, 3D है तो BOD within how many days? 30 days. बट अगर ये रेजिग्नेशन के वजह से है तो बोर्ड विल फिल द वैकेंसी विद इन 30 days. एट सच अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन. इसका टेन्योर कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. अगर ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है तो कौन सा सेक्शन एक्टिवेट होगा? 140 सबसेक्शन 2 जो बात करता है अबाउट ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन. सो इसको क्या करना है? फाइल, बोलो यार, फाइल स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर ADT 3 विद इन हाउ मेनी डेज? 30 days. बराबर. तो ये क्या किसको क्या लिख के देंगे इसके अंदर? फैक्ट्स एंड अदर रीजंस कॉजिंग रेजिग्नेशन. किसे देंगे? अगर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी एंड ROC, बट अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी ROC एंड C&AG. सही बात है एकदम, यस सर. उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर ये सेक्शन को कंप्लाई नहीं करा तो कौन सा सेक्शन एक्टिवेट होगा? 140 सबसेक्शन 3 जिसमें मिनिमम जुर्माना है ₹50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन whichever is less, and in case of continuous failure ₹500 per day after the first, subject to maximum of ₹2 lakh. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 139 subsection 2 talks about what? Rotation of auditor. It is applicable to listed company, unlisted public company having paid up share capital greater than or equal to 10 crores, private company having paid up share capital greater than or equal to 50 crores, and companies other than A or B but having borrowings plus deposits greater than or equal to 50 crores. Not applicable to small company and one person company. Provision क्या कहता है? Individual shall not be appointed for more than one term of 5 consecutive years and an audit firm for 2 terms of 5 consecutive years. Cooling period is of individual के लिए, firm के लिए, common partner, common control, brand name, trade name. A break in term of 5 consecutive years is considered as completion of the provision. बराबर है कि नहीं? Yes sir. अब चर्चा करते हैं सेक्शन नंबर 177 applicable to public or private companies.
पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, इसमें लिस्टेड कंपनीज के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए पीबीटी 10, 50, 100। और एक बात, पीबीटी 10, 50, 100। पी मतलब क्या कहेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल, बी मतलब बोरोइंग, डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर, एंड टी मतलब टर्नओवर। बोरोइंग्स, डिपॉजिट, डिबेंचर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद मुझे बताइए कि यहां पे जो ये ऑडिट कमेटी बनती है, ये कौन से लोग होंगे इसके अंदर? मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 3, और मेजोरिटी होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब इनका काम क्या क्या है? सबसे पहले रिकमेंडेशन अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर ये लोग क्या करेंगे? मॉनिटर द ऑडिट प्रोसेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। फिर एग्जामिनेशन करेंगे कौन सी 2 चीजों का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, एंड दे विल इंश्योर द बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सही है। अब ये लोग मैनर एंड सिलेक्शन, मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, तो ये लोग कौन थे? ऑडिट कमिटी। आप लोग कौन है यहाँ पे? और ये लोग कौन है? मेंबर्स। सो ऑडिट कमिटी विल गिव द रिकमेंडेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल, इफ दे agree, further recommend it to the members, and members will do the appointment. But if the board disagrees, they will refer it back to the audit committee, citing what? Reasons. And if the audit committee considers not to consider its original recommendation, board will record the reasons in writing and give its own recommendation to the members, and members will do the. तो ये हुआ सेक्शन नंबर 177. अब चलिए बात करते हैं ऑडिटर को पैसा देने का है. सेक्शन नंबर कौन सा? 142. So remuneration of the auditor shall be determined in the general meeting, or shall be fixed in the general meeting, or in such a manner as may be determined therein. Right? The board of directors, however, can fix the remuneration of the first auditor only if it is appointed by it. सही है एकदम? यस सर. अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? नंबर 1, फीस पेएबल, any facility extended to him, and expenses incurred by the auditor in connection with the audit, but does not include fees paid for any other services. अब ऑडिटर को बाय बाय बोलना पड़ेगा. 2 सेक्शन आएंगे. कौन से है? 140 सबसेक्शन 1, 140 सबसेक्शन 4. 140 सबसेक्शन 1 बात करता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. राइट? तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? ये मस्ती किसको सूझेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल पास a resolution and inform whom? Central government within 30 days. In form number, पक्की बात है एकदम? यस सर. इन फॉर्म नंबर ADT2. सो इसके बाद ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा. विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला तो दे विल पास अ, मेंबर्स विल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल. क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा? 140 सबसेक्शन 4 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. सो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे? स्पेशल नोटिस. किसको देंगे? रिटायरिंग ऑडिटर को. वो क्या बनाएगा? रिप्रेजेंटेशन. दैट विल बी सर्कुलेटेड अलोंग विद द नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग. बट इफ दे डू नॉट सर्कुलेट बिकॉज कंपनी में फेल बिकॉज ऑफ 2 reasons. नंबर 1, इट वाज रिसीव्ड टू लेट, और बिकॉज ऑफ द कंपनीज डिफॉल्ट. So उसको क्या राइट मिलता है? टू रीड इट इन दी जनरल मीटिंग, एंड दिस कॉपी शुड बी फाइल्ड विद दी ROC. बट अगर लगता है किसी अग्रीड पर्सन को कि ही इज अब्यूजिंग हिज ऑथोरिटी, सो ही कैन कंप्लेन इट टू द ट्रिब्यूनल, एंड ट्रिब्यूनल कैन स्टॉप सच रिप्रेजेंटेशन. सो ये बात होगी अपनी सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. सबसे पहले राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब एक्सेस कर सकता है? एट ऑल टाइम्स. बराबर. क्या वो हेड ऑफिस के एक्सेस कर सकता है? kept at any other place, ब्रांच ऑफिस के? यस सर. एंड क्या वो सब्सिडरी और एसोसिएट के भी कर सकता है? यस सर. ओनली इन रिलेशन टू कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या एक्सेस देने के साथ साथ क्या उसको इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन भी मिलनी चाहिए? कौन डिसाइड करेगा? चाहिए अपने को ऑडिटर. बराबर. उसके बाद अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट इट टू द मेंबर्स. उसके बाद ही इज गॉट द राइट टू अटेंड विच मीटिंग? बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग? बोलो फटाफट. जनरल मीटिंग. कैन इट बी एनी जनरल मीटिंग? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, ऐसी मीटिंग जिसमें अकाउंट्स भी डिस्कस नहीं हुए हैं. यस सर. मुझे बताइए क्या उसको नोटिस टू जनरल मीटिंग भी मिलना चाहिए क्या? किसी भी चीज के ऊपर बोल सकता है क्या? वो सिर्फ उन्हीं चीज के ऊपर बोल सकता है विच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर. क्या ये इसका राइट है? क्या ये इसका ड्यूटी भी है? अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड. तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है. यस सर. बताइए दोस्तों मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? अरे बोलो भाई, कैसे रिपोर्ट करेंगे? बोलो ना.
अरे अच्छे से। एफ मतलब क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ए मतलब अकाउंट्स। एस मतलब स्टैंडर्ड्स। टी मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद क्या वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? इसका गाइडेंस किसने दिया था? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। मुझे बताओ, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उसके लिए अगर पैसा मिला है नहीं मिला है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स लीगली आने चाहिए इलीगली आने चाहिए? कौन से क्लाइंट का होना चाहिए? जिसका काम किया है या किसी उसका रिश्तेदार का? जिसका काम किया है। तो ये गाइडेंस दिए है ICAEW ने। सही है एकदम? यस सर। अब बात करते हैं ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। नंबर 1 टू इंक्वायर इनटू सर्टेन मैटर्स। A for advances, B for, C for, D for, E for, F for. ए में हम लोग क्या बात करते हैं? वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड द टर्म्स आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। बुक से हम लोग बात करते हैं वेदर ट्रांजैक्शंस बाय मियर बुक एंट्रीज आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सी से हम लोग बात करते हैं वेदर कंपनी अदर देन बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी हैव सोल्ड सो मच ऑफ इट्स एसेट्स इन शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज बिलो द प्राइस एट व्हिच इट वाज परचेज्ड, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट्स, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड टू रेवेन्यू अकाउंट एंड वेयर शेयर्स हैव बीन इश्यूड फॉर कैश, वेदर cash has actually been received. If not, what is the position in financial statements, whether it is correct, regular and not misleading. सही है एकदम? yes sir. Second duty हम लोग बात करते हैं duty to sign what? audit report. Number 3 हम लोग बात करते हैं duty to comply with the standards on auditing. अब सबसे important duty हम लोग जो बात करते हैं वो है section number 143 subsection 3 जो बात करता है about duty to report. उसके अंदर 10 पॉइंट हम लोग ने पढ़े थे. Number 1, whether he has obtained all the information and explanation which is to the best of his knowledge and belief necessary for the purpose of audit. Number 2, whether proper books of accounts as required by law has been maintained and whether the returns of the branches not audited by him has been sent to him. Number 3, where the auditor other than company auditor of the branch, if the report of the branch audit has been sent to him and the manner in which it has been dealt with. Number 4, whether books of accounts and balance sheet and profit and loss account agree with each other. And if the financial statements, fifth point में, whether financial statements comply with the accounting standards. उसके बाद हम लोग बात करते हैं whether any financial transaction or matter have an adverse effect on the functioning of the company. Next point हम लोग बात करते हैं whether directors are disqualified under section number 164 subsection 2. उसके बाद your qualification, comment or remark on the maintenance of books of accounts. And last point हम लोग बात कर second last point हम लोग बात करते हैं कि whether company has adequate internal financial controls and whether they are operating effectively. But this is given exemption to certain private companies. Those are one person company, small company and a company whose number 1 क्या कहते हैं? turnover is less than 50 crores and क्या बोलेंगे? borrowings is less than 25 crores. तो उन्हें एग्जेम्पशन मिलेगा. बट ये ऐड हो जाएंगे, इनके ऊपर IFC का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 92 एंड 137. इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट कहता है एनी अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अबाउट व्हाट पेंडिंग लिटिगेशंस, मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस और डिले इन ट्रांसफरिंग टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. इसका फोर्थ पॉइंट हमने क्या कहा है कि क्या कोई ऐसे हमने पैसा एडवांस किया है क्या बराबर टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी which has not been disclosed in the financial statements. ऐसा मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना है या उसका ही ऑपोजिट की फंडिंग पार्टी ने किसी को पैसा दिया है क्या, ऐसा मैनेजमेंट से अपने को रिप्रेजेंटेशन लेना है. तो ये खत्म हो गया अपना. फिर अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट वी टॉक अबाउट इज सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11 जो बात करता है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स विच इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी इशू अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर directing certain class of companies to report the matter specified in that particular order. इसी सेक्शन के तहत, इसी ऑर्डर के तहत एक ऑर्डर आया जिसका नाम है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020. तो इसमें दो बातें हम लोग देखते हैं, ये किसे एप्लीकेबल है और किसे एप्लीकेबल नहीं है. ये किसे एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एक्सेप्ट one person got his Samsung S8 insured from a private bank. One person company, Samsung small company, S8 section 8 company, insurance company, private limited company, banking company. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कंडीशन क्या है दोस्तों?
private limited company not being the holding or subsidiary of a public company having paid up share capital and reserves and surplus not exceeding 1 crores and borrowings from banks or financial institutions not exceeding 1 crore and total revenue from as disclosed in schedule 3 not exceeding 10 crores. सही है एकदम? यस सर. क्लॉज 21 सिर्फ किसे एप्लीकेबल है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. अब बात करते हैं एक एक क्लॉज के बारे में, हेडिंग्स बताएंगे, खत्म करेंगे इसको. फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट, जिसमें 5 पॉइंट रिपोर्ट करने हैं. वो कौन से हैं? रिकॉर्ड. सेकंड पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन. थर्ड टाइटल डीड्स. फोर्थ रिवैल्यूएशन एंड फिफ्थ बेनामी प्रॉपर्टीज. सेकंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं इन्वेंट्री. नंबर 1 फिजिकल वेरिफिकेशन. नंबर 2 वर्किंग कैपिटल फाइनेंस. बराबर ना. नंबर 3 हम लोग बात करते हैं लोन्स. सो लोन्स के अंदर क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहले वेदर द एग्रीगेट अमाउंट एंड बैलेंस एज ऑन द बैलेंस शीट डेट गिवन टू सब्सिडरीज एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स एंड अदर देन सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर. सेकंड पॉइंट टर्म्स एंड कंडीशंस नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. Schedule of repayment. Number 4 overdue for more than 90 days, reasonable steps taken for recovery. Number 5 fresh loans, renewed extension. Number 6 repayable on demand. So 5th और 6th में amount and percentage आपको दिखाना पड़ेगा. 4th point में हम लोग बात करते हैं loans investment guarantee with the provisions of section number 185 and 186 has been complied with. उसके बाद 5th point हम लोग बात करते हैं about what? Public deposits, RBI के directives and 73 to 76 of Companies Act and the orders given by CLB, NCLT, any other tribunal, any other court, बराबर, and RBI. उसके बाद 6 point हम लोग बात करते हैं about what? Cost records under section number 148 subsection 1 अगर मेंटेन करना है तो क्या उन्होंने किया है या नहीं. उसके बाद 7 point हम लोग बात करते हैं about what? Statutory dues. दो इसके अंदर disputed and undisputed. अगर ये undisputed है, क्या कंपनी उसको रेगुलरली जमा कर रही है या नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो आपको बताना है अमाउंट in arrears for a period concerning more than 6 months from the date it becomes payable but it should be outstanding as on the balance sheet date. उसके बाद अगर ये disputed है तो आपको बताना है amount and the forum where it is what pending. सही है एकदम? yes sir. उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वो है अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस. अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस में अगर कोई इनकम आपने डिस्क्लोज करी है एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको करंट पीरियड में भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट, बोलो ना, रिपेमेंट ऑफ लोन्स. तो रिपेमेंट ऑफ लोन्स में क्या आपने डिफॉल्ट किया है तो अमाउंट और पीरियड बताना है वो टेबल में. सेकंड पॉइंट, क्या आप बिल्कुल डिफॉल्टर हो, आपने पर्पस गलत यूज किया है, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया है. एंड उसके बाद 5th और 6th पॉइंट में क्या आपने बच्चों के ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए लिया है या आपने बच्चों के सिक्योरिटीज को प्लेज करके आपने लोन लिया है. सही एकदम. बच्चे मतलब कौन कौन है यहाँ पे? सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर. उसके बाद हम लोग सीक्वेंस में बात करते हैं फ्रॉड हुआ. फ्रॉड किधर हुआ? बोलो ना. निधि कंपनी में फ्रॉड हुआ. किसने किया? रिलेटेड पार्टी ने. सो हमने किसको बुलाया? इंटरनल ऑडिटर को. उसने क्या देखा? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, बराबर. फिर उसके बाद, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, नॉन कैश ट्रांजैक्शन. उसके वजह से हुआ क्या? आप लोग गए किधर? एनबीएफसी. उन्होंने बोला आपको हो गए लॉसेस तो आपने मांगा ऑडिटर का रेजिग्नेशन. लास्ट 2 पॉइंट्स क्या थी? एक रेशियोस एंड अनस्पेंट अमाउंट. और क्लॉज 21 जो रिपोर्ट करना है आपको किसके लिए? राइट. सो फ्रॉड के बारे में अगर बात करें तो कौन से फ्रॉड को रिपोर्ट करना है? ऑन और बाय द कंपनी 143(12) का और विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स आपने कंसीडर करे या नहीं. निधि कंपनी के रूल्स के हिसाब से आपको नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट का रेशियो मेंटेन करना है 1:20 एंड यू हैव टू कीप व्हाट 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स. एंड थर्ड पॉइंट, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन द रिपेमेंट ऑफ लोन्स और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स. उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेटेड पार्टी विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 177 एंड 188 हैज बीन कंप्लाइड विद एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट as per applicable accounting standard. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज इंटरनल ऑडिटर. सो क्या एडिक्वेट इंटरनल ऑडिट सिस्टम है commensurate to the size and nature of the business and with the statutory auditor has considered the report of internal auditor. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 192 has been complied with. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है NBFC, whether NBFC required to be registered under section number 45IA, वो आपको देखना है. वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या नहीं है. इफ इट इज अ CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, वेदर दे कंटिन्यू टू फुलफिल द क्राइटेरिया एंड इफ द ग्रुप हैज मोर देन 1 CIC, कितने CIC है उसको इंडिकेट करना है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट?
लॉसेस, तो कैश लॉस अगर है आपको करंट ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको अमाउंट इंडिकेट करना है. एंड अगर रेजिग्नेशन दिया है तो वेदर द ऑब्जेक्शंस ऑफ द आउटगोइंग ऑडिटर, कंसर्न्स ऑफ द आउटगोइंग ऑडिटर हैज बीन कंसर्न. फिर उसके बाद रेशियोज, फाइनेंशियल एजिंग या क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज, इससे आपको देखना है कि क्या विद इन अ ईयर कुछ रिपेमेंट में गड़बड़ तो नहीं है ना. एंड लास्ट में हम लोग बात करते हैं अनस्पेंट अमाउंट. सीएसआर की दो सेक्शंस 135 सबसेक्शन 5 जिसमें अपने को फंड में पैसा डालना है, 135 सबसेक्शन 6 स्पेशल अकाउंट में पैसा डालना है. सही है एकदम? यस सर. 21 ये सीएफएस के लिए रिपोर्ट करना है. फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ब्रांच ऑडिट के बारे में. सो ब्रांच ऑडिटर कौन हो सकता है? कंपनी ऑडिटर, एनी अदर पर्सन हु इज क्वालिफाइड. अगर ये फॉरेन ब्रांच है तो कंपनी ऑडिटर बाय एनी अदर अकाउंटेंट और एज पर द लॉज ऑफ दैट फॉरेन कंट्री. इसके जो पावर्स एंड ड्यूटीज है इट इज सेम एज दैट ऑफ द कंपनी ऑडिटर. कल जाते जाते हम लोग बात कर रहे थे जॉइंट ऑडिट के बारे में. तो जॉइंट ऑडिट के बारे में क्या कहा हमने? बोलो, वेयर वी आर पूलिंग द रिसोर्सेज ऑफ मोर देन वन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? जॉइंट ऑडिटर. सही है एकदम? यस सर. तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे बताइए? शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, लोअर वर्कलोड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड लोअर वर्कलोड. देयर इज बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव्ड सर्विसेज टू द क्लाइंट. फिर आपका फेवरेट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी टेकन ओवर इन अ टेक ओवर इज ऑफन प्रिवेंटेड. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन केस of multinational companies work can be spread using the expertise of local firms which are in a better position to deal with the detailed work and the local laws of that country. सही है एकदम? यस सर. 8 और 9 पॉइंट क्या कहता है? लोअर कॉस्ट, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट एंड लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क. एंड लास्ट में देयर इज अ सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन. डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? फीस बीइंग शेयर्ड. तो फीस शेयर होने की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो इसको आया सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. सो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, सो कॉमन एरिया इज नेग्लेक्टेड. सो देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट लाइबिलिटी फॉर वर्क डन. तो इसने बोला नहीं, इसने भी बोला नहीं, तो ऐसे आया 299. ऐसे नंबर 299 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स. एंड लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो अपना बचता है वो है सेक्शन नंबर 148 का कॉस्ट ऑडिट. सो कॉस्ट ऑडिट के लिए रूल्स कौन से आए यहाँ पे? कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014. ये किसे एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल है? सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू companies classified as micro and small as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, but it is applicable to class of companies engaged in production or manufacturing of goods or services including foreign companies having total turnover greater than or equal to 35 crores. क्लास ऑफ कंपनीज में दो कंपनीज कौन सी? रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड. रेगुलेटेड में कौन सी कंपनीज है? डीके, पेट ने जीपीएस चलाया. मतलब क्या है? ड्रग्स, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, गैस, फार्मास्यूटिकल एंड शुगर. एंड नॉन रेगुलेटेड में कौन सी है? अटैक्स ऑन सीएम. मतलब कौन से है? आर्म्स एंड एम्युनिशन, टायर, ट्यूब, टर्बोजेट, सीमेंट, स्टील, मेडिकल डिवाइसेस. इनको ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन इंडिविजुअल टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़. नॉन रेगुलेटेड के लिए इंडिविजुअल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़. एग्जेम्पशन कब मिलेगा इनको? स्पेशल इकोनॉमिक जोन और 75% of the revenue is from exports or generating electricity for captive consumption through captive generating plant. सही है एकदम? यस सर. अब अगर इनको ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बराबर विद इन हाउ मेनी डेज? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. बराबर है कि नहीं? इन अब इसको अगर इंटीमेट करना है तो इन फॉर्म नंबर CRA2 कब इंटीमेट करेंगे? विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट और 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच is earlier. सही है एकदम? यस सर. इसका रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेंगे? मेंबर्स. बराबर. अब ये जो ऑडिटर आएगा ये काम करेगा. सो ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इन फॉर्म नंबर CRA3 विद इन हाउ मेनी डेज? 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. अब ऑडिटर ये रिपोर्ट बोर्ड को दिया, बोर्ड किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को. इन फॉर्म नंबर CRA4 विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट. That's it, done. So that's it. Here we are done with the revision of our very first chapter. Thank you guys. Bye bye. Have a great day ahead. Tada.